Hello everyone. In the last video lecture, we talked about the characteristic of the second order PD. Today, we are going to discuss about the Cauchy problem. So, as we know that, as you have gone through the previous lectures, we can solve the second order PD by converting it into the canonical form. Okay. Now, in this lecture today we are talking about the Cauchy problem. So what is the Cauchy problem? Here you have to find out the solution of the second order PD. But that second order PD is along with some conditions. That means that problem have to satisfy certain conditions. Okay. Whatever the solution we got of the given PD, that solution will also satisfy these conditions. Okay, that should also have to satisfy these conditions. So if all these conditions are related to the single value of the independent variable, then उस प्रॉब्लम को हम कहेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. और जो ये कंडीशंस है, these conditions associated conditions are known as the initial conditions. Means let us talk about the Cauchy problem. Cauchy problem है क्या हमारे पास? Cauchy प्रॉब्लम की ये स्टेटमेंट है. जस्ट हैव ए लुक ऑन दिस. Cauchy प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम इस तरीके से देंगे. लेट अस कंसिडर द सेकंड ऑर्डर पीडी. एज यू हैव ऑलरेडी सीन दैट सेकंड ऑर्डर पीडी स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इस तरीके से लिखेंगे, दैट इज आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू जीरो. यहाँ पर जो ये कैपिटल आर एस टी है दैट मे बी कॉन्स्टेंट और मे बी ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई. ओके. नाउ वी सपोज कि सी इज सम कर्व इन अ प्लेन. ओके. सो व्हाट यू हैव टू डू, हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा सोल्यूशन निकालना है इस इक्वेशन का. दैट मीन्स सोल्यूशन क्या होगा इसका, जेड. जेड इज द अननोन एक्चुअली. ओके. सो यू हैव टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1 ऑफ द गिवन पीडी, दैट मीन्स जेड, सच दैट कि अगर हम कर्व पे बात करें सो इट टेक्स द प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू ऑफ द जेड एंड कर्ल जेड बाई कर्ल एन. ओके. सो व्हाट इज कर्ल जेड बाई कर्ल एन? दैट इज द डिस्टेंस along the normal to the curve. यहाँ पर जो ये n है, इस n का मीनिंग क्या है, दैट इज द डिस्टेंस मेजर्ड along the normal to the curve. तो जो ये प्रॉब्लम बनी, दैट प्रॉब्लम इज नोन एज द Cauchy प्रॉब्लम. ओके. नाउ लेट वी टॉक अबाउट व्हाट काइंड ऑफ द प्रॉब्लम मीन्स वी हैव टू सॉल्व like by using the Cauchy. So you have to solve the Cauchy problem. The statement is there, you have to solve the Cauchy problem described by equation this thing. So this is the second order PD and along with there are some conditions कि जो इसका solution आएगा, these have to satisfy, these must satisfy this condition, this one and this one. और ये दोनों की दोनों condition आप चेक कर सकते हो कि दोनों की दोनों किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिफाइन है. यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर एक्स तो एज इट इज है लेकिन y इक्वल टू जीरो पर डिफाइन है ये कंडीशन. और यहाँ पर भी आप देखोगे जो ये डेरिवेटिव निकाला है मैंने, ये भी y इक्वल टू जीरो पर डिफाइन है, दैट इज इक्वल टू जी एक्स. सो दैट मीन्स इफ बोथ द कंडीशंस आर डिफाइंड ऑन द सिंगल वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट कंडीशंस आर नोन एज द इनिशियल कंडीशंस. ओके. सो हमें इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है जो इस इनिशियल कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करे. Right. So let us start the solution. Given problem is this one. Now let us, we have to convert it into the canonical form. Canonical form हम जैसे कि पिछले lectures अगर आपने go through किए हैं, you can see that कि how to convert it into the canonical form. So let me show you कि आपके पास जो ये problem है इसको लेके चलते हैं कि कैसे इसे canonical form में convert करेंगे. We have already discussed that method. How to convert it into the canonical form, that is given over here. कि हमारे पास अभी ये प्रॉब्लम है, इसे नोटेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए. कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल एक्स स्क्वायर को हम कॉल करते हैं आर से, कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल वाई स्क्वायर का सपोज वी आर कॉलिंग इट बाय टी. ओके. सो वी आर सेइंग दैट आर माइनस टी इक्वल टू जीरो. Now we compare this given PD with the standard second order PD, which is this one, RR plus SS plus TT plus function of x y z equal to 0. Right. Now we will look it over there. Value of the R will be 1
value of s will be 0 and value of capital T will be -1. So by comparing we get the value of this thing. So if we check that ki what kind of the problem is this, so we find out the term s square minus 4rt. अगर मैं s square minus 4rt की वैल्यू चेक करते हैं हम तो हमारे पास आ रही है 4 विच इज़ पॉजिटिव. ओके, सो दैट मीन्स गिवन जो आपकी पीडी है दिस इज हाइपरबोलिक, राइट. अब हमें इसे कन्वर्ट करना है कैनोनिकल फॉर्म में. कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यू नो दैट व्हाट आर द वर्किंग रूल्स. देयर आर सम स्टेप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सम न्यू वेरिएबल लैम्डा बाय यूजिंग द कैपिटल आर एस टी. सो कैपिटल आर एस टी का यूज करके हमने लैम्डा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, राइट. सो प्लेस द वैल्यू ऑफ आर एस टी की वैल्यू हम प्लेस करते हैं तो ये इक्वेशन बन गई. यहाँ से लैम्डा की दो वैल्यू आ रही है दैट इज +-1. सो दैट मीन्स रूट्स आर द रियल एंड डिफरेंट. नाउ एक रूट को हम कॉल कर देते हैं λ1, दूसरे को λ2. सपोज λ1 इज 1 एंड λ2 इज -1. वट इज द सेकेंड स्टेप? देन यू हैव टू फॉर्म द ओडी बाय कंसिडरिंग द वैल्यू ऑफ द लैम्डा, राइट. ओडी आपकी क्या होगी? dy/dx प्लस λ1 = 0 एंड सेकंड ओडी क्या होगी? dy/dx प्लस λ2 = 0. लैम्डा की 1 की वैल्यू क्या है? 1. ये यहाँ पर प्लेस करोगे और -1 यहाँ पर प्लेस करोगे, दो ओडी बन गई, राइट. सो सेकंड स्टेप के अकॉर्डिंग जब हम इन दो ओडी को सोल्व करते हैं, आपकी जो ये गिवन ओडी है, गिवन ओडी को सोल्व करते हैं, ओवर देयर वैल्यू लैम्डा की प्लेस करने के बाद ये आपकी जो इक्वेशंस आई है इनको आप सोल्व कीजिए. आफ्टर टेकिंग द इंटीग्रेशन दैट मीन्स आफ्टर सोल्विंग यू आर गेटिंग y + x = सम कांस्टेंट एंड इस इक्वेशन से आएगा y - x = सम कांस्टेंट. अब जो ये फंक्शन है इसको मैं कॉल कर रहा हूँ u एंड इसको हम कॉल कर रहे हैं v. ओके, तो कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मीनिंग ही यही था हमारा कि हमारे पास जो गिवन सेकंड ऑर्डर पीडी है उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके x एंड y है, तो वहाँ से उसे मैं कुछ न्यू वेरिएबल u एंड v में कन्वर्ट करूँगा और वो इस तरीके से कन्वर्ट होगा जो आपकी नई कन्वर्जन के बाद पीडी आएगी दैट विल बी ईजी टू सॉल्व. ओके, दैट इज़ द कैनोनिकल फॉर्म एक्चुअली. सो हमें u और v में कन्वर्ट करना है, तो नए u और v जो है एक्चुअल में वो ये है, ये u है और ये आपका v है. सो दिस इज u इज y + x एंड v इज y - x. सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, हमारी जो गिवन पीडी है उसमें जो भी वैल्यू है p q r s t की वो वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है u और v के टर्म्स में और प्लेस करनी है गिवन इक्वेशन है. तो p q r s t की वैल्यू प्लेस करनी है. लेकिन हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है उसमें हमारे पास केवल r और t है, लेकिन r क्या है? डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. तो पहले मुझे सिंगल डेरिवेटिव निकालना होगा, फिर डबल डेरिवेटिव पे जाओगे. सो दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सिंगल डेरिवेटिव क्या है विद रिस्पेक्ट टू x? p है, राइट. फिर सेकंड डेरिवेटिव आएगा r. सिंगल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या है? q है z का, और z का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करते हो तो t आएगा. ओके, सो दैट मीन्स p q r एंड t यू विल फाइंड आउट, राइट. सो लेट अस सी हाउ. ये p is there which is curl z over curl x. Okay, now considering that you have to convert it as a function of u v. So z is as a function of u v, so you have to find its derivative with respect to x. So what it will be? You will say that z is a function of u and v. So first of all derivative of z with respect to u partially into derivative of u with respect to x. So this is there, plus derivative of z with respect to v partially into derivative of v with respect to x partially, right. So by using the chain rule you will get this thing, right. But you know the value of u and v. अगर मुझे u की वैल्यू और v की वैल्यू पता है तो कर्ल u ओवर कर्ल x यहाँ से क्या आ गया आपका 1 एंड कर्ल v ओवर कर्ल x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, वो क्या आएगी? -1. तो वो दोनों वैल्यू प्लेस करते हैं. व्हेन यू प्लेस बोथ वैल्यूज़ यहाँ पर आपका आ जाएगा कर्ल z ओवर कर्ल v और ये हो जाएगा माइनस कर्ल z ओवर कर्ल v. तो ये यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये वैल्यू आ गई आपकी p की, राइट. इसी तरीके से अगर मैं ऑपरेटर यहाँ पर यूज करता हूँ, p का मीनिंग क्या है आपका यहाँ पर? p इज कर्ल z ओवर कर्ल x. अगर मैं ऑपरेटर की बात करता हूँ इस z को अलग कर दीजिए और यहाँ से ये कॉमन लेके z मेरा ऐसे आ जाएगा कर्ल बाई कर्ल u माइनस कर्ल बाई कर्ल v एंड दैट इज दैट. सो व्हाट इज ऑपरेटर? ऑपरेटर इज कर्ल बाई कर्ल x इज इक्वलेंट टू कर्ल बाई कर्ल u माइनस कर्ल बाई कर्ल v, राइट. सो ये ऑपरेटर आपका इक्वलेंट है, राइट. इसी तरीके से हम q की वैल्यू अगर फाइंड आउट करते हैं, q क्या है आपका? कर्ल z ओवर कर्ल y. लेकिन z तो क्या था आपका? z इज ए फंक्शन ऑफ u v, इसमें कन्वर्ट करना है. सो यू से दैट कर्ल z ओवर कर्ल y विल बी इक्वल टू कर्ल z ओवर कर्ल u इंटू कर्ल u ओवर कर्ल y प्लस कर्ल z ओवर कर्ल v इंटू कर्ल v ओवर कर्ल y, राइट. u और v की वैल्यू आपको पता है, u तो है आपका x प्लस वाई, राइट, और v क्या है आपका? v है y माइनस एक्स. तो यहाँ से आपको y की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे u का, तो ये क्या आएगा? यहाँ से 1 आएगा और इधर से करते हो तब भी 1 आएगा, राइट.
तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1, ये भी आ जाएगी 1, तो इन दोनों की वैल्यू प्लेस करते हैं तो क्या आ गया, यू कैन सी ओवर देयर, आप प्लेस करने के बाद आपके पास वैल्यू आ गई है, क्यू की वैल्यू आ गई कल जेड ओवर कल यू प्लस कल जेड ओवर कल वी। ओके, अब पी और क्यू आ गया, तो अगर मैं यहाँ से ये क्या है कल बाय कल वाई ऑफ जेड, अगर मैं जेड को सेपरेट करता हूँ तो ऑपरेटर बच जाएगा आपका कल बाय कल वाई, वो किसके इक्विवेलेंट होगा, कल बाय कल यू प्लस कल बाय कल वी, इसके इक्विवेलेंट होगा, राइट। सो दैट विल बी योर क्यू, बट what you have to finally have to find out, we have to find out r and t. How to find out this r? R is actually curl square z over कर्ल एक्स स्क्वायर, राइट। सो व्हाट इज दिस वन, इसको मैं लिख सकता हूँ कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ कर्ल जेड ओवर कर्ल एक्स, राइट। दैट कैन बी रिटन लाइक दिस। अगर इसे हम ये लिख रहे हैं तो यू कैन ओबियसली यू कैन राइट इट इन दिस वे आल्सो कि कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ व्हाट, आपके पास यहाँ पर कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स की वैल्यू क्या होगी, यू विल से कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स की वैल्यू देख लीजिए, कल से कर्ल जेड ओवर कर्ल एक्स की वैल्यू आई है ये आपकी कर्ल जेड ओवर कर्ल यू माइनस कर्ल जेड ओवर कर्ल यू, ये वैल्यू आई है, राइट। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं आर में, तो यहाँ पर ये इक्वेशन बन जाएगी कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ कर्ल जेड ओवर कर्ल यू माइनस कर्ल जेड ओवर कर्ल वी, राइट। अब जब मैं इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट करना है तो फिर अगेन चेन रूल, आप कहोगे इस टोटल ब्रैकेट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू कीजिए इनटू यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर इस पूरे ब्रैकेट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी कीजिए इनटू डेरिवेटिव वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे करेगी, राइट। तो हम लिख देते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट विद रिस्पेक्ट टू यू कर्ल जेड ओवर कर्ल यू माइनस कर्ल जेड ओवर कर्ल वी, ओके, इनटू कर्ल यू ओवर कर्ल एक्स, लेकिन कर्ल यू ओवर कर्ल एक्स की वैल्यू क्या थी 1, राइट। सो विल गेट इनटू में 1, नो नीड टू राइट, प्लस इसी ब्रैकेट का डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वी, तो विद रिस्पेक्ट टू वी करोगे तो क्या आ जाएगा दिस थिंग, इनटू में कर्ल वी ओवर कर्ल एक्स, लेकिन कर्ल वी ओवर कर्ल एक्स क्या होगा आपका -1, सो नो नीड टू राइट, यू जस्ट राइट इट ओवर देयर, यहाँ पर वैल्यू प्लेस कर देगा, ओके, ये माइनस हो जाएगा आपका, राइट। तो इसी को अगर मैं ओपन करता हूँ तो आपका क्या आ गया, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू आ गया, ये रहा, राइट। और यहाँ से देखता हूँ तो प्लस में डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इसका जब इसके साथ करेंगे तो प्लस में डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी, ये रही वो टर्म, और जब इसको मैं इसके साथ करूँगा तो कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल यू कर्ल वी, और इस फर्स्ट टर्म को अगर मैं ओपन करता हूँ कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल वी कर्ल यू, लेकिन कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल यू कर्ल वी किसके इक्वल होता है, कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल वी कर्ल यू के इक्वल होता है, राइट। तो दैट विल बी द सेम, सो इनको ऐड करके मैं कह सकता हूँ कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल यू कर्ल वी 2 टाइम्स आ जाएगा, सो दैट इज दिस वन विद माइनस साइन, राइट। सो इन दिस वे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आर इज दिस थिंग, राइट। ये आपका आर आ गया। व्हाट इज टी, टी विल बी कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल वाई स्क्वायर, इसको रिलेट करके लिख सकते हो कर्ल बाई कर्ल वाई ऑफ कर्ल स्क्वायर कर्ल जेड ओवर कर्ल वाई, राइट। लेकिन कर्ल जेड ओवर कर्ल वाई क्या था आपका, दैट वाज कर्ल बाई कर्ल वाई ऑफ, इसकी वैल्यू थी आपकी कर्ल जेड ओवर कर्ल यू प्लस कर्ल जेड ओवर कर्ल वी, ओके। जब इसको आप सोल्व करोगे तो इसका डेरिवेटिव ब्रैकेट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू इंटू यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या हो जाएगा 1, ओके। फिर इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी इंटू में वी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, वो क्या हो जाएगा 1, तो उसको सोल्व करोगे। सो इन दिस वे जैसे हमने अभी सोल्व किया है, इसे सोल्व करने के बाद यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू प्लेस करने के बाद वो सोल्व करने के बाद ये आ जाएगी, दिस इज टी, यू कैन सोल्व इट एंड यू कैन चेक, यू विल गेट दिस। अब आपके पास आर और टी की वैल्यू आ गई है, आर एंड टी, आर और टी की वैल्यू ही चाहिए हमें गिवन इक्वेशन में, तो गिवन इक्वेशन मेरी क्या थी, आर माइनस टी इक्वल टू 0, तो ये रहा आपका आर फिर माइनस साइन और ये रहा आपका टी, आर माइनस टी इक्वल टू 0। जब इसे आप सोल्व करोगे तो आपका कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल यू स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा और ये वाली टर्म है ये कैंसिल हो जाएगी, माइनस माइनस ये 4 टाइम्स हो जाएगा कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल यू कर्ल वी, सो बोथ साइड डिवाइडेड बाय -4 यू विल गेट कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल यू कर्ल वी इक्वल टू 0, right. So in this way you are getting this equation, so this is the canonical form of the given PDE. So you can check that कि जो मेरे पास given PDE थी उसके कंपेयर में इसे सोल्व करना ईजी है, so that is actually the canonical form, right. So how to solve it, so इसे एक बार इंटीग्रेशन कर दीजिए with respect to u, एक बार इंटीग्रेशन कर दीजिए with respect to v, you will get the answer. So when you taking the integration with respect to u, so it will be कर्ल z over कर्ल v,
एंड इक्वल में सम कांस्टेंट, लेकिन जब मैं u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो v कांस्टेंट है, इसलिए राइट हैंड साइड लिखा हमने फंक्शन ऑफ v, राइट। सो कर्ल जेड और कर्ल v इक्वल टू जी वी, गॉट। अब इसे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू v, क्योंकि मुझे फाइनली z निकालना है। सो अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू v, सो यू विल गेट z, एंड टू द राइट हैंड साइड इंटीग्रेशन ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू v, दैट विल बी दिस वन प्लस सम कांस्टेंट, लेकिन जब v के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो u कांस्टेंट है, इसलिए लिख दिया प्लस में फंक्शन ऑफ u, राइट। तो जब मैं v के फंक्शन का v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो सम फंक्शन ऑफ v यू विल गेट, सो उसको मैंने कॉल कर दिया कैपिटल GV, और ये रहा आपका फाई u। सो दैट मीन्स z विल बी इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ v प्लस सम फंक्शन ऑफ u, राइट। सो यू विल गेट दिस थिंग। अब हमें u और v पहले से ही पता है कि क्या है, u की वैल्यू तो मेरे पास क्या है y प्लस एक्स, और v की वैल्यू है y माइनस एक्स, तो वो वैल्यू प्लेस कर दिया हमने ये रही। तो इस तरीके से यूज करके मेरे पास क्या आ गया, z आ गया, राइट। अगर मैं g और फाई ना कहने के बजाय फाई और साई कह देता हूँ, इसे फाई कह दीजिए, इसे साई का साई रहने दीजिए, ठीक है। तो इसमें फाई बोल देता हूँ तो ईजी हो जाएगा राइट करना, ओके। नहीं तो जी भी रहने दीजिए, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम हो देयर। तो अगर मैं इसे फाई लिखता हूँ, सो जेड बिकम्स फाई ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस साई ऑफ एक्स प्लस वाई, बस रीनेम किया है फंक्शन का, राइट। सो फाइनली हमारे पास सोल्यूशन ये आ चुका है कि जेड विल बी इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई। सो ये फंक्शन सोल्यूशन हम वहाँ पर यूज कर रहे हैं कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, जो मेरे पास प्रॉब्लम थी, लेकिन प्रॉब्लम को मुझे कोशिश से सोल्व करना है। सो लेट अस मूव टू ओवर दैट पार्ट। Yes, you are coming over there. Yes, yeah. So you are getting curl square z over curl u curl v equal to 0. That is the canonical form we got, as we have seen now. Okay. और इसका solution अभी आपने find out किया, that is the solution. Z will be equal to function of x minus y plus function of x plus y. Now we will use the two conditions. Okay, two initial conditions I have to use. तो कॉशी प्रॉब्लम में हमारे पास दो इनिशियल कंडीशन गिवन है, एंड व्हाट आर दिस इनिशियल कंडीशन, दिस इज वैल्यू ऑफ जेड एट वाई इक्वल टू 0 इज एफ एक्स, एंड वैल्यू ऑफ कल जेड ओवर कल वाई एट वाई इक्वल टू 0 इज जी एक्स, ओके। तो मेरे पास एक वैल्यू तो डायरेक्ट आ जाएगी। अगर यहाँ पर ये रहा आपका जेड, अगर मैं जेड में वाई को 0 रख देता हूँ तो ये जेड किसके इक्वल होगा, एफ एक्स के इक्वल। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड में तो आ जाएगा आपका एफ एक्स, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा, फाई एक्स प्लस साई एक्स, क्योंकि वाई 0 है, फाई एक्स प्लस साई एक्स, ओके। एक इक्वेशन ये आ जाएगी, राइट। एंड एक इक्वेशन क्या आएगी, इस पहले जेड का डेरिवेटिव कीजिए आप, क्योंकि मुझे जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, तो इसका डेरिवेटिव कीजिए विद रिस्पेक्ट टू वाई। जब इसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो क्या आएगा, लेफ्ट साइड में तो कल जेड और कल वाई आ जाएगा, राइट साइड में आएगा फाई डैश ऑफ एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा, -1, तो ये आ गया, प्लस साई का डेरिवेटिव साई डैश एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा, 1, ओके। सो यू विल गेट दिस वैल्यू। अब इस इक्वेशन में अगर मैं y को 0 पुट करता हूँ तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, gx। तो इसमें y को 0 पुट कीजिए, तो जब मैं y को 0 पुट कर रहा हूँ तो y को 0 पुट करने के बाद यू आर गेटिंग, यहाँ पर y को 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -5 डैश प्लस साई डैश एक्स, -5 डैश एक्स प्लस साई डैश एक्स, और लेफ्ट हैंड साइड में आएगा कल जेड बाई कल वाई की वैल्यू एट वाई इक्वल टू 0, लेकिन वो मुझे गिवन है gx, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका आ गया gx। तो एक इक्वेशन बन गई ये, और एक इक्वेशन आपके ऊपर बनी है एफ एक्स इक्वल टू फाई एक्स प्लस साई एक्स, ओके। तो ये इक्वेशन और जो ऊपर इक्वेशन है उन दोनों को सोल्व कंसिडर करते हैं, राइट। फाइनली वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जेड एक्चुअली, ओके। और जेड की वैल्यू आपकी क्या है, फाई ऑफ एक्स माइनस वाई या साई ऑफ एक्स माइनस वाई। तो ये वैल्यू निकाल कर इन्हें ऐड करना है मुझे। तो मेरे पास दो इक्वेशन आई है अभी, इन दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पर रीराइट कर लेते हैं। आई एम राइटिंग ओवर हियर। सो फर्स्ट इक्वेशन इज देयर, दिस इज फाई एक्स प्लस साई एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एंड सेकेंड इक्वेशन है माइनस साई डैश एक्स प्लस फाई डैश एक्स प्लस साई डैश एक्स इक्वल टू जी एक्स। इसको हमने कॉल किया स्टार एंड डबल स्टार, राइट। तो यहाँ पर है इक्वेशन नंबर, स्टार लिख दीजिए, डबल स्टार है, सॉरी 2 नहीं है, डबल स्टार। सो इंटीग्रेटिंग डबल स्टार विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, सो व्हाट यू विल गेट, अगर डबल स्टार को मैं इंटीग्रेट करता हूँ सो दैट विल बी माइनस ऑफ फाई एक्स प्लस साई एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेगा, एंड लिमिट आई एम टेकिंग लिमिट 0 टू एक्स, विद इन द लिमिट 0 टू एक्स। तो इसको भी इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेट कर दिया तो ऐसे लिख दिया जी यू डी यू 0 टू एक्स, मतलब रीनेम कर दिया वेरिएबल का, ओके। और इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू
x and within the limit 0 to x. So when you apply the limit, upper limit minus lower limit, that is the upper limit minus lower limit, that will be equal to this thing. ओके अब जो ये टर्म है आपकी, इसको मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ राइट हैंड साइड में. इसे राइट हैंड साइड में यहाँ पे ट्रांसफ़र कीजिए तो आपके पास एक इक्वेशन बन गई, माइनस 5x प्लस साई एक्स विल बी इक्वल टू 0 to x du du माइनस 50 प्लस साई 0. इसको हम कॉल कर देते हैं ट्रिपल स्टार. राइट नाउ यू लुक एट कि मेरे पास एक इक्वेशन फाई और साई में आ गई ट्रिपल स्टार, एक इक्वेशन आ गई स्टार. राइट ये भी फाई और साई में. तो अब इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कीजिए तो फाई की वैल्यू साई की वैल्यू आ जाएगी. एक बार इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कीजिए तो वहाँ से फाई की वैल्यू आ जाएगी. जब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो यू कैन चेक हियर, जब मैं इसे ऐड करूँगा दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद फाई और माइनस फाई कैंसिल हो जाएगा. 2 साई एक्स विल बी इक्वल टू एफ एक्स प्लस दिस थिंग. ओके तो 2 को डिवाइड करना है दो साइड, तो साई एक्स की वैल्यू आप देख सकते हो. दिस इज द वैल्यू ऑफ द साई एक्स. ओके सो साई एक्स की वैल्यू आ गई. राइट और हियर लुक, लेट मी शो यू दिस वन. साई एक्स की वैल्यू आ गई. अगर उन दोनों को मैं आपस में सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो. इसे अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ आपस में, सो इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 5 प्लस 5 2 5 हो जाएगा एंड साई साई कैंसिल हो जाएगा. दैट विल बी एफ एक्स माइनस दिस टर्म. ओके दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 5x. सो यू आर गेटिंग दिस वन, 5x विल बी इक्वल टू दिस थिंग. राइट सो 5 एंड साई वी गॉट, बट सोल्यूशन हमारा क्या था, z इज इक्वल टू 5 ऑफ y माइनस एक्स प्लस साई ऑफ y प्लस एक्स. ये था सोल्यूशन. तो मुझे 5 और साई की वैल्यू चाहिए y माइनस एक्स और y प्लस एक्स पर. ओके तो लेकिन मेरे पास 5x और साई एक्स तो आ गया. अब यहाँ पर मुझे x की जगह क्या चाहिए, y प्लस एक्स, और यहाँ पर x की जगह मुझे क्या चाहिए y माइनस एक्स. ओके सो यू विल राइट डाउन ओवर देयर, इट इज ओवर हियर, यू हैव टू राइट इट y माइनस एक्स. ओके सो यहाँ x माइनस वाई की जगह y माइनस एक्स लिख लीजिए, दैट इज विद माइनस साइन. इसी को विद माइनस साइन कर दीजिए. राइट इट इज विद माइनस साइन, ब्रैकेट के अंदर ही माइनस साइन करते हैं. दैट मीन्स दिस इज y माइनस एक्स एक्चुअली, नॉट x माइनस वाई, दिस इज y माइनस एक्स. राइट तो ये इक्वेशन है, जहाँ पर x है वहाँ सब जगह आप क्या कर दोगे y प्लस एक्स कर दीजिए तो आपकी इक्वेशन बन गई. और जहाँ पर ये x है वहाँ पर y माइनस एक्स कर दीजिए सब जगह, तो आपकी सेकंड इक्वेशन ये बन गई. अब मुझे इन दोनों को इक्वेशन को ऐड करना है, दैट विल बी द z. ओके सो व्हेन यू आर एडिंग दिस थिंग, सो व्हाट इट विल बी, z विल बी इक्वल टू व्हाट, z विल बी इक्वल टू 5 ऑफ y माइनस एक्स. यहाँ पे y माइनस एक्स करोगे आप प्लस y माइनस एक्स, ओके एंड प्लस साई ऑफ x प्लस वाई. तो इन दोनों को ऐड करोगे दैट विल बी हाफ कॉमन, इन दोनों में से हाफ कॉमन है, एंड दैट विल बी एफ ऑफ x प्लस वाई प्लस एफ ऑफ y माइनस एक्स. राइट इन दोनों को ऐड करोगे तो हाफ विल बी कॉमन, माइनस ऑफ दिस थिंग प्लस ऑफ दिस थिंग. राइट इन दोनों को ऐड करोगे दिस विल बी कैंसल आउट. ओके सो फाइनली व्हेन वी आर एडिंग, सो वी आर गेटिंग दिस वन. Right, z will equal this and half of this. So this you can check that this is minus of this integral plus of this integral. But over here integral in जो ये term है integrand is the same in both integral. Okay, so that may be added. But if we apply the property of the integral, limit is 0 to x minus y. If I change it x minus y to 0, so sign will be changed. So minus will be applied over there. Okay, so minus minus plus, तो x minus y to 0 किया तो ये प्लस हो गया. राइट एंड दैट प्लस 0 to x प्लस वाई 0. अगर दोनों को कंबाइन करते हैं x माइनस वाई टू 0 प्लस 0 to x प्लस वाई, सो यू नो दैट 0 इज लाइंग बिटवीन x माइनस वाई टू x प्लस वाई. सो आई एम सेइंग दैट कैन बी रिटन एज x माइनस वाई टू x प्लस वाई. सो वी आर राइटिंग दिस. ओके इंटीग्रल को कंबाइन किया बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी 0 to a प्लस a to b. If a is lying between 0 and b, then it can be written as 0 to b. Right? So you are getting z will be equal to this thing in terms of given f and g. जो आपकी इनिशियल कंडीशन थी उनका यूज करते हुए z की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी. विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द गिवन सेकेंड ऑर्डर पीडी बाय यूजिंग द इनिशियल कंडीशन. और जो ये इनिशियल कंडीशन गिवन थी उन्हीं इनिशियल कंडीशन को बोलते हैं हम कोशी कंडीशंस. ओके सो दैट प्रॉब्लम इज एक्चुअली द कोशी प्रॉब्लम. गिवन सेकेंड ऑर्डर पीडी को कोशी कंडीशन के यूज करके सोल्व करना. राइट सो इन द सिमिलर मैनर यू हैव टू सोल्व द गिवन क्वेश्चंस. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. सो लेट मी शो यू द क्वेश्चंस. ओके जो हम गिवन
पी डी डिस्कस कर रहे थे, दैट इज एक्चुअली द वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन. ओके, जो हमने लिखा है ना आर माइनस टी इक्वल टू जीरो, तो ये होती है आपकी आर माइनस टी इक्वल टू जीरो, दैट इज एक्चुअली द वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन. ओके, तो हमने वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को किससे सोल्व किया है? कोसी से. ओके, so that was the Cauchy problem for one dimensional wave equation, right? So there are the problems, look at it here and try it as we have discussed above. Okay, similarly there is two more question, this one, right? So you have to find the solution of the Cauchy problem for these given equations, and last one is this thing. So the next topic we will discuss in the next class. Thank you very much, students.